Okay, hello everyone. Welcome to Q Physics Academy. Uh, uh, we know IIT JAM 2025 का जो एग्जाम है बेसिकली 2 फरवरी को होने वाला है, ठीक है। और आज से लेके आपके पास लगभग 10 डेज के आसपास बच रिमेनिंग है। सो इन विथिन दिस 10 days remaining times, it is very vital days for your preparations. So today's video is mainly for how to utilize is how to utilize the remaining 10 days in proper way. So that's why I present here last 10 days preparation strategy. Okay. So hello dear student, my name is Mithun Patro and I am a PhD scholar at NISERS. I am actually working in exoplanet atmosphere and exoplanet formations related work. Okay, so let's start our video. So in this video, I mentions you 5 components which are most important to also for your positivity, right? Before the examinations, and also you reach the examination center with a better mindset, right? So this video not related to subject. This video is not related to important topics. This video is mainly for your confident boost up related things, right? So okay, so first component is actually I mention here first component is deep concept revision. Deep concept revisions. So first of all, in 10 days, deep concept revisions is most important. So deep concept revisions from your notes. You already revise your notes proper way, and from short notes. Okay, from short notes. So first is deep concept revisions. So in 10 days में actually आपको थोड़ा सा आपको concept के साथ भी टच में रहना पड़ेगा. सिर्फ ओनली क्वेश्चन प्रैक्टिस भी नहीं करना है, आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट भी रिवीजन करना है. इसीलिए आपको थोड़ा बहुत डीप कॉन्सेप्ट आपने हाईलाइट करके रखा है, आपके नोट में आपके हाईलाइट करके रखे है, आपने शॉर्ट नोट तैयार करके रखा है जिसमें आप इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को आप हाईलाइट करके रखे. उसी कॉन्सेप्ट को आप इस 10 डेज में रिवाइज करिए, ठीक है. सो इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने के लिए आपको एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स होना चाहिए. पर्टिकुलर टाइम आप इस कॉन्सेप्ट को आप एक पर्टिकुलर टाइम में आप खुद के हिसाब से आप फिक्स कर लीजिए. मैं शायद उसी के ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा, आपको कैसे इस 10 डेज में इस 5 कंपोनेंट को भी कैसे यूटिलाइज करना है, इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है. सो 5 डीप कॉन्सेप्ट आपको रिवीजन करना है एक प्रॉपर टाइम में, जो इस 10 डेज में इस कंसिस्टेंसी को आपको मेंटेन करना है. ओके, सेकंड पॉइंट में जो आता है बहुत इंपॉर्टेंस जो है लास्ट 5 years क्वेश्चंस पेपर. Okay, last 5 year questions paper solutions. Last question paper solutions under exam like conditions. It means exam like conditions. आपको जो लास्ट 5 years का IIT एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर से उसी सारे क्वेश्चन पेपर को एक दिन के इंटरवल में आपको इसको एग्जाम लाइव कंडीशन, मतलब एग्जाम आपको जिस स्लॉट में है उसी 3 hours का स्लॉट लेके आपको उसी टाइम में उस 5 year का क्वेश्चन आपको एग्जाम एनवायरनमेंट क्रिएट करके आपको सॉल्व करना होगा. एग्जाम एनवायरनमेंट क्रिएट करके सॉल्व करना है मतलब आपको एक एग्जाम देना है, आपको माइंड में एग्जाम देने का हैबिट तैयार करना है इस 5 days में, ठीक है. आपको एक स्क्रिबल पेन लेना है. आप मार्केट में जाइए, मार्केट से आप IIT जैम का एग्जाम में जैसा स्क्रिबल पेन मिलता है उसी तरह का स्क्रिबल पेन भी आपको मिल जाएगा. You buy it from market and then solve the 5 year questions in proper way, not using hand wash. You use stopwatch related stopwatch, and in proper way you give the exams, and you fix how to attempt the question paper. I attempt first 2 number questions, I attempt from 1 number questions, and for 1 number questions how many times I devoted, for 2 number questions how many times I spent. This is very important. So this practice
This practice is very, very important in remaining 10 days, and this practice will come up if you go through 5-year questions under एग्जाम लाइक कंडीशन. ओके, सो आपको 5 ईयर का क्वेश्चन एग्जाम लाइक कंडीशन में बैठ के, एग्जाम की जो स्लॉट है उसी स्लॉट में बैठ के आपको एग्जाम देना पड़ेगा. ठीक है, आपको एक हैबिट तैयार करना है. थर्ड जो कंपोनेंट है, आपको 1 से लेके 2 मॉक टेस्ट देना है. 1 से लेके 2 मॉक टेस्ट अंडर एग्जाम लाइक कंडीशंस. अंडर एग्जाम लाइक कंडीशंस. ओके, जैसे 5 ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे आप, इसी तरह को आपको कुछ मॉक टेस्ट देना है जो नेशनल लेवल का मॉक टेस्ट होगा, जिसमें बहुत सारा स्टूडेंट पार्टिसिपेट करता है. ठीक है, उसी तरह का मॉक टेस्ट आपको लेना है. ठीक है, इस तरह मॉक टेस्ट आपको लेना है, और उसी मॉक टेस्ट को आपको किसी भी एग्जाम से पहले, आप 3-4 दिन पहले आप ये जो मॉक टेस्ट है इसको आप खत्म कर लीजिए, इसको कंप्लीट कर लीजिए उसी एग्जाम के स्लॉट में बैठ के 3 आवर्स का एग्जाम. क्योंकि एक्चुअली पता है क्या, अभी जो हम लोगों का माइंड ब्रेन का सिचुएशन है, स्टूडेंट बेसिकली स्टूडेंट लोगों का, वो स्टूडेंट लोग 3 आवर्स बैठते ही नहीं है. दे आर नॉट सिटिंग फॉर 3 आवर्स. आफ्टर 3 इयर्स देयर ब्रेन विल बी सैचुरेटेड. सो आपको पहले से प्रैक्टिस होना चाहिए, 3 आवर्स क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रैक्टिस होना चाहिए. एग्जाम लाइक फीलिंग्स लेके आपको, एग्जाम लाइक फीलिंग लेके आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना के एक हैबिट होना चाहिए. इसीलिए आपको 5 इयर्स का क्वेश्चन पेपर सॉल्व भी करना चाहिए एग्जाम वाली जो शॉर्ट स्लॉट है उसमें बैठ के. और देन you will also give the mock test under exam like conditions. Okay, ये वाला 3 this is the 3 component. 4 component जो है ना, it is very, very important. 4 component जो है, आपको mock test को analyze करना होगा. analyze your silly mistake, analyze your silly mistakes, weak area, strength area. ओके, अब 5 ईयर का क्वेश्चन एग्जाम लाइव कंडीशन में बैठ के दीजिए. उसमें से आपको जो सिली मिस्टेक होगा उसको आप पहले एनालिसिस कीजिए. उसमें से जो वीक एरिया आपको अभी भी वीक एरिया मिल रहा है उसको आप फिर से उसको देखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और उसमें से आपको जो स्ट्रेंथ एरिया मिले उसको और भी स्ट्रेंथ करिए. तो एनालिसिस वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट. एनालिसिस ऑफ सिली मिस्टेक्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. वीक एरिया ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, और स्ट्रेंथ एरिया को और भी स्ट्रेंथ करना है. जो स्ट्रेंथ पोर्शन है उसको आपको रिवीजन में रखना है, क्योंकि उसी से आपको मार्क्स मिलेगा. ठीक है, वीक एरिया और स्ट्रेंथ एरिया में फोकस करना इस 10 डेज में वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट. सो बी फोकस. और लास्ट जो 5 कंपोनेंट में से लास्ट कंपोनेंट जो है ना, बी पॉजिटिव. ओके, दैट इज वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट. बी पॉजिटिव एंड डोंट कंपेयर योरसेल्फ. ये मैंने क्यों बोला, ये सबसे ज्यादा इस लास्ट फेज में स्टूडेंट लोग क्या करते हैं पता है, वो जो है दूसरे स्टूडेंट के साथ खुद को कंपेयर करने लगता है. वो बहुत पढ़ लिया, उसने टेस्ट में उसको बहुत मार्क्स. ऐसा नहीं है. इस एग्जाम के लास्ट डेज में आपको मोटिवेट रहना है, आपको प्रैक्टिस करना है, आपको जो सिली मिस्टेक्स है उसके ऊपर काम करना है. ठीक है, अब अगर अभी जो टेस्ट मैच हुआ है, ठीक है, उस टेस्ट में देखिए विराट कोहली का पिछले वाला आप रिकॉर्ड देखोगे उसमें बहुत है. तो उस रिकॉर्ड अभी जो टेस्ट मैच हुआ है उसमें कोई काम नहीं आया एक्चुअली. इसका मतलब जिस दिन आपको खेलना है, मतलब जिस दिन आपको एग्जाम देना है, उस दिन आपको अच्छा परफॉर्मेंस होना चाहिए. इसलिए आपको पॉजिटिव रहना चाहिए, दूसरे के साथ कंपेयर नहीं होना चाहिए. तो अब मैं तो ये बोलूंगा, इस 10 डेज में आप जो लोग IIT एग्जाम का प्रिपरेशन ले रहे हैं उसके साथ बात करना छोड़ दीजिए. ज्यादा से ज्यादा कम बात कीजिए, जितना हो सके इतना बात कीजिए. ठीक है, क्योंकि आपको उस लोगों के पास कोई आपको ये बोलेगा मैं ये वाला टॉपिक पढ़ लिया, आपने पढ़ा, आपने देखा वो वाला टॉपिक नहीं पढ़ा, उसने बोलेगा मैंने इतना क्वेश्चन सॉल्व कर लिया. तो इस तरह का माहौल होना नहीं चाहिए. आपके पास आपका भी आपके जो सराउंडिंग्स है उसमें पॉजिटिव माहौल होना चाहिए, क्योंकि आपको एग्जाम में अच्छा मार्क्स लेके आना है. क्योंकि आप जितना पढ़ाई कर लिया ना वो सफिशियंट है.
आपने जितना क्वेश्चन पढ़ाई कर लिया, जितना क्वेश्चन सॉल्व कर, जितना पीआई को आपने सॉल्व कर लिया, जितना थ्योरी आपने कंप्लीट कर लिया, वो सफिशिएंट है आपके एग्जाम के लिए। ओके, सो आपको पॉजिटिव रहना है, ये वाला पॉजिटिव वाला फीलिंग्स लेके आपको एग्जाम में बैठना है और आपको एग्जाम में फोड़ के आना है। यही आपका माइंडसेट होना चाहिए इस 10 डेज में। तो इस 10 डेज में आपको मैंने जो पिछले वाला वीडियो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, उसको रिवीजन कर लीजिए और इस 5 कंपोनेंट को आप अच्छे से स्ट्रॉन्ग बना लीजिए, आपका एग्जाम 100% क्लियर होगा। सो अगेन ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। ओके, थैंक यू।